In class 10, today we will start our next chapter from Footprints Without Feet. And our lesson is A Question of Trust, written by Victor Canning. Victor Canning is the writer of this lesson, A Question of Trust. Victor Canning, he was a famous English writer of novels and thrillers. Now, children, the story, A Question of Trust, which you are going to read, is based on the robbery committed in a house of at Shotover Grange. Shotover Grange एक पर्सन का नाम है. He is a man, एक फैमिली है जिनके घर में एक रॉबरी वो हुई. And in this chapter, Horace Danby, he was a character. Horace Danby, he was a lock maker. वो लॉक मेकिंग का काम करता था. He was fond of reading expensive and rare books, but he did not have the money, so he used to rob a safe every year. He steals only once a year. When Horace Danby was inside the house, a lady, she came there. Horace thought she was the lady of the house. Horace ने सोचा कि वो घर की मालकिन है. In fact, she was also a thief, like Horace Danby. She tricked Horace and took away all the jewels. And poor Horace, he had to go to prison. Now, children, let's read our lesson and find out what happened. A question of trust. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. Everyone thought, everyone means every people. वो क्या सोचते थे कि जो Horace Danby है, he was a good, वो अच्छा है, honest as well as honest ईमानदार person भी है. He was about 50 years old and unmarried. And Horace Danby, his age was लगभग 50 years की थी and he was unmarried. And he lived with a housekeeper who worried over his health. And Horace Danby, because he was unmarried, so he lived with his housekeeper, servant के साथ रहता था, who worried over his health, जो Horace Danby की health के बारे में चिंता करते थे. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. In fact, जो Horace Danby था वो he was usually very well, मतलब उसकी जो अर्निंग थी वो बहुत अच्छी थी और वो हैप्पी भी था. केवल उसको समर में हे फीवर, समर का फीवर उसको हो जाता. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. And उसको क्या काम करता था? He made locks, वो लॉक बनाता था. And he was सक्सेसफुल इनफ, और वो बिल्कुल अपने काम में बिल्कुल सक्सेस था, अपने प्रोफेशन में, कि उसके काम में उसकी हेल्प करने के लिए he had two helpers also. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. जो Horace Danby है, he was good and respectable, he was थे, but not completely honest, लेकिन वो fully बिल्कुल ईमानदार नहीं थे. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. बेटे here sentence means क्या कहते हैं? Sentence कहते हैं punishment को. And 15 years पहले की बात है. Horace उनको उनकी पहली सजा और जो punishment थी वो एक prison library, जेल की लाइब्रेरी में उनको भुगतनी पड़ी. He loved rare and expensive books, and I already told you कि जो Horace Danby था उनको rare, दुर्लभ और expensive, बहुत महंगी बुक पढ़ने का बहुत शौक था. So he robbed a safe every year. तो क्या करते था? इसके लिए every year, हर साल एक safe, एक तिजोरी को वो लूटता था. Each year he planned carefully just what he do
stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved to an agent. और वो क्या करते थे, each year वो केयरफुली प्लान करते थे कि मुझे क्या काम करना है ताकि मैं रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को ड्रॉप कर सकूं। और वो क्या करते थे, और फॉर इतना पर्याप्त कमा लेते थे कि 12 मंथ्स के लिए उनका वो इनफ। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. Now walking in the bright July, and बेटे bright July कैसा होता है, बहुत तेज धूप होती है, बहुत hot होता है। Bright, it was the month of July, और bright means the sun was shining brightly, बहुत तेज धूप थी। And he felt sure, and Horace Danby was completely sure, उन्हें पूरा विश्वास था कि इस साल की उनकी जो रॉबरी होगी वो दूसरे सालों के जैसी वो सक्सेसफुल होगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. क्यों? क्योंकि कितने हफ्ते से, 2 हफ्ते से वो Shotover Grange का जो हाउस था उसकी वो क्या कर रहे थे, he had been studying, उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, उसको रॉब करने के लिए, उस पर डकैती करने के लिए। लुकिंग एट इट्स रूम्स, और उसके रूम्स को देख रहे थे। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग को सर्च कर रहे थे। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसके रास्ते को और उसके गार्डन। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, और इस आफ्टरनून को क्या हुआ, 2 सर्वेंट्स जो who remained in the Grange, जो Shotover Grange के घर में रहते थे, जबकि जो सारी फैमिली थी वो कहाँ रहती थी, वो लंदन में रहती थी। had gone to the movie, और उस दिन क्या हुआ, वो लोग भी उसके Shotover Grange के जो सर्वेंट, जो हेल्पर थे, वो भी मूवी देखने चले गए। Horace saw them go, और Horace ने उन सर्वेंट्स को जाते हुए देखा। And he felt happy in spite of a little trickle of hay fever in his nose. And he felt happy, and Horace Danby वो बहुत खुश हुए कि अब वो क्या करेंगे, वो घर को लूट लेंगे। और जबकि उनको उनके नोज में एक टिकल, हल्की सी खुजली भी हो रही थी। He came out from behind the garden wall, और Horace Danby उस घर के पीछे की वॉल से वो अंदर आए। His tools carefully packed in a bag on his back, और Horace Danby के जो टूल्स थे, जो औजार थे, वो केयरफुली उनकी पीठ पर थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe, और Grange की जोड़ी में कितने 15,000 पाउंड्स के जो ज्वेलरी थी कि उनकी वैल्यू कितनी थी, There were 15,000 पाउंड्स के लगभग, जिसकी जो वैल्यू थी वो लगभग 50,000 थी। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. और Horace Danby, he knows, वो जानते थे कि अगर वो क्या करेंगे, इन ज्वेलरी को 1 by 1 करके वो सेल करेंगे तो वो अगले साल तक भी खुश रह सकते हैं। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, और ऑटम के मंथ में 3 important books वो सेल के लिए आ रही थी। Now he would get the money he wanted to buy them, अब उसको पैसे मिल जाएंगे, जिन बुक्स को वो खरीदना चाहता है वो उसको he will purchase them. He had seen the housekeeper hand the key to the kitchen door on a hook outside, and Horace ने देखा कि जो सर्वेंट्स थे जब वो मूवी के लिए गए, उन्होंने क्या किया, की को, घर की जो चाबी थी वो किचन के दरवाजे पे इसको हैंग कर दिया। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door, and Horace ने क्या किया, He put on the gloves, उसने ग्लव्स को पहने, चाबी को ली और he opened the door. He was always careful not to leave anything open, and while doing robbery, लूटते समय, डकैत करते समय, Horace हमेशा ध्यान रखता था कि कोई फिंगरप्रिंट्स को वहाँ पे ना छोड़ दे। A small dog was lying in the kitchen, and kitchen में एक छोटा सा डॉग वो लेटा हुआ था। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. It stirred and the dog, it moved, वो हिला, उसने नॉइस किया, शोर किया, वो भौंका, और उसने अपने टेल को, अपनी पूंछ को फ्रेंडली वे में हिलाया। All right, शेरे, Horace said as he passed. तो जब Horace वहां से गुजरा, उसने कहा all right, शेरे, शेरे मीन्स डॉग से कहा
All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अब हॉरे वो जानता था कि डॉग्स को शांत कैसे रखा जाता है। डॉग्स को शांत रखने की आर्ट की कला को हॉरेक जानता। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी, इसके पीछे एक पेंटिंग के पीछे। एंड हॉरेक ही वंडर्ड, ही सरप्राइज फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए तो वो हैरान हो गया। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि वो बुक्स इंस्टेड बुक्स की बजाय क्या वो पिक्चर को कलेक्ट करे। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसके पास केवल कम टाइम था। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, उसने सोचा कि मेरा जो घर है वो कैसा है, वो छोटा है, तो मेरे लिए बुक्स ही क्या बेटर रहेगा। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और टेबल पे फ्लावर्स एक बहुत बड़ा सा बाउल था। एंड हॉरेक फेल्ट हिज नोज प्रिकल, और हॉरेक को अपने नोज पे एक खुजली सी प्रिकलिंग सी महसूस हुआ। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, वो जरा सा छींका हल्का सा और उसने अपने बैग को नीचे रखा। He carefully arranged his tools, उसने केयरफुली अपने टूल्स को अरेंज किया। He had 4 hours before the servants returned, उसके पास अब 4 घंटे थे, मतलब सर्वेंट्स को आने के 4 घंटे बाकी। And the safe was not going to be hard to open, और सेफ तिजोरी खोलना हॉरेक के लिए it was not a difficult work. After all, he had lived with locks and safes all his life. क्यों? क्योंकि जो हॉरेक था, he spent his कंप्लीट लाइफ, अपनी कंप्लीट लाइफ को वो किसमें स्पेंड कर चुका था, लॉक और सेफ को खोलने में। द बर्गलर अलार्म वॉज कोल्डली बेल, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट हिज वायर, और वो कहाँ पे गया, इनटू द हॉल, हॉल में गया इलेक्ट्रिक वायर को काटने के लिए। एंड हॉरेक केम बैक एंड स्नीज बैडली, और वो बुरी तरह छींका। क्यों? क्योंकि जो स्मेल ऑफ द फ्लावर्स थी, it came to him again. How foolish people are when they own valuable things. हॉरेक ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं। A magazine article had described this house. एक मैगजीन थी, उस आर्टिकल में इस हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। शॉर्ट ओवर ग्रैंज के हाउस को डिस्क्राइब किया हुआ था। उसमें बताया गया था इस घर में क्या है, कि इसमें और इस हाउस के ऑल द रूम्स की प्लान बताया गया था, और ये बताया गया था कि इस रूम में पिक्चर है। एंड द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड द सेफ, और राइटर ने आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी छिपी हुई है। बट हॉरेक फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, हिंडरिंग मींस क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल, रुकावट पैदा करना। और हॉरेक ने क्या पाया कि जो फ्लावर्स हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, उसके वर्क में ऑब्स्टेकल्स, हिंडरिंग, वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। एंड सो हॉरेक ही बरीड हिज फेस विद हिज हैंकरचीफ, से अपने फेस को उसने ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डोरवे, फिर दरवाजे से उसको आवाज सुनाई दी। व्हाट इज इट, ये क्या है? अ हे फीवर, ये क्या समर का फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक हॉरेक सेड हे फीवर, इससे पहले कि हॉरेक कुछ सोचता, हॉरेक ने कहा हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा छींकी। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद द स्पेशल ट्रीटमेंट, और जो आवाज थी जो दरवाजे से आई ना, उसने वो क्या किया, उसने क्या रिप्लाई किया कि तुम अपने हे फीवर को का ट्रीटमेंट कर सकते हो, इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। इफ यू फाइंड आउट, अगर आप पता लगा लो किस प्लांट से आपको ये होता है। आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और उस वॉइस ने, जो वहां पे आई अननोन वॉइस थी, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी आवाज टॉप ऑफ द हाउस से सुन लिया था, तुम्हें छींकते हुए, तुम्हें स्नीजिंग करते हुए टॉप ऑफ द हाउस से अभी अभी। नाउ बेटे, now come to the word meaning of the lesson. Rare, very difficult to obtain. Hay fever, a summer fever. Tickle, light touch.
Word, value, stare, move. Now children, your homework is read the lesson given in your book and do the oral comprehension questions also. Thank you and have a nice day.